تصور کریں کہ ایک طرف ایسی آبادی ہے جو کوئی 2 ارب افراد پر مشتمل ہے، بے پناہ وسائل اور ایک وسیع تاریخ، اور دوسری طرف صرف چند لاکھ لوگوں کا ایک چھوٹا سا خطہ۔ لیکن جب عالمی شطرنج کی بازی بچتی ہے تو وہ چھوٹا سا خطہ ان 2 ارب لوگوں کے بالکل مرکز میں گھس کر ان کے سب سے بڑے لیڈر کو نشانہ بناتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پوری 2 ارب کی آبادی صرف ایک خاموش تماشائی بنی رہ جاتی ہے۔ اس عالمی بے بسی کو آج کی جیو پولیٹکس سے نہیں بلکہ 1400 سال پرانی ایک حیرت انگیز پیشگوئی سے جوڑتا ہے۔ 1400 سال پرانی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی تعداد تو بے تحاشا ہوگی، لیکن ان کی حیثیت سمندر پر تیرتی ہوئی جھاگ یعنی فوم جیسی ہوگی، اور ان کا دشمنوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور مخالف ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دعوت کے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہ اس حدیث کے سچ ہونے سے پہلے 1000 سال کا ایسا دور آیا جب مسلمان دنیا کی انکویسچنڈ سپر پاور تھے۔ بہترین سائنس تھی، اسٹرونومی تھی، میڈیسن تھی، ہر بڑا سائنسدان اس دور میں انہی میں سے تھا۔ لیکن پھر آتی ہے عثمانیہ خلافت یعنی آٹومن امپائر، اور یہاں وہ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں تاریخ کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا ہے، اور وہ غلطی تھی ایک نئی ایجاد کا انکار، یعنی پرنٹنگ پریس، چھپائی کی مشین۔ جب 15ویں صدی میں یورپ میں یہ مشین آئی تو اچانک کتابیں تیزی سے چھپنے لگیں۔ جو کتاب ہاتھ سے لکھنے میں مہینے لگتے تھے وہ دن میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام تک پہنچنے لگی۔ لیکن جب یہ مشین آٹومن امپائر پہنچی تو انہوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ اسے حرام قرار دے دیا، جس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ پرنٹنگ پریس صرف کتاب چھاپنے کی مشین نہیں تھی، یہ نالج ڈسٹریبیوشن کا انجن تھا۔ جب آٹومن امپائر نے اس پر پابندی لگائی تو انہوں نے دراصل علم پر ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری یعنی مونوپولی قائم رکھی۔ اس کے اثرات کیسکیڈنگ تھے، یعنی ایک کے بعد ایک ڈومینوز گرنے لگے۔ جب یورپ نے پرنٹنگ پریس کو اپنایا تو کتابیں سستی ہو گئیں، ہر عام گھر تک علم پہنچا۔ اس کا سب سے انقلابی اثر یہ ہوا کہ تاریخ میں پہلی بار یورپ میں عورتیں وسیع پیمانے پر پڑھ لکھ گئیں، اور جب ان عورتوں نے ایک نئی نسل پروان چڑھائی تو اس نسل میں نیوٹن، گیلیلیو اور ایڈیسن جیسے سائنسدان سامنے آئے، نئی ٹیکنالوجی آئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ جبکہ دوسری طرف مسلمان ابھی تک کتابیں ہاتھ سے لکھ رہے تھے اور مسئلے کی یعنی سیکٹیرین بحثوں میں الجھے ہوئے تھے۔ سو جب ان 2 مختلف تہذیبوں کا سامنا ہوا تو ایک کے پاس توپیں اور انڈسٹریل مشین تھی اور دوسرے کے پاس تلواریں۔ نتیجہ وہی نکلنا تھا جو سامنے آیا کہ اس ٹیکنالوجی اور تعلیم سے دوری کی وجہ سے وہ امپائر آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا ہوتا گیا، اور ورلڈ وار 1 کے بعد اس کمزوری کا ننگے دھرنگ روپ سامنے آیا۔ عثمانیہ خلافت کو یورپ نے بالکل ویسے ہی بانٹ لیا جیسے اس حدیث میں دعوت کے کھانے کی مثال دی گئی، اور اسی بندر بانٹ میں اسرائیل کا قیام بھی عمل میں آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ طاقت کی بنیاد صرف فوج نہیں ہوتی بلکہ وہ تعلیمی اور ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو اس فوج کو بناتا ہے۔ ورلڈ وار 1 کی اس شدید مایوسی کے بعد ان لیڈرز کی بات ہوتی ہے جنہوں نے اس بے بسی کے دور میں ایک نئے قسم کی مزاحمت شروع کی، سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ اور اس میں سب سے پہلا ذکر آتا ہے سعودی عرب کے شاہ فیصل کا۔ شاہ فیصل کی اپروچ واقعی آؤٹ آف دا باکس تھی۔ انہوں نے روایتی فوج پر انحصار کرنے کے بجائے سیاسی اور معاشی ہتھیار آزمائے، مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے OIC بنائی، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اور اسرائیل کے خلاف مشترکہ جنگ شروع کی۔ لیکن جب انہیں لگا کہ امریکہ اور یورپ اسرائیل کو بچا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلا، جو کہ عرب تیل یعنی آئل ویپن تھا۔ انہوں نے صرف سپلائی چین کاٹ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو عرب تیل کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، جس کا نتیجہ پوری دنیا نے دیکھا۔ یورپ اور امریکہ کی سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی ہو گئی، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی، انرجی کا ایسا بحران آیا کہ سپر پاورز کے پاؤں کھڑنے لگے، لیکن اس بغاوت کی قیمت انہیں چکانی پڑی۔ اچانک انہیں انہی کے ہی بھتیجے نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ شاہ فیصل کی موت کے ٹھیک 4 سال بعد پڑوسی ملک ایران میں ایک انقلاب آتا ہے۔ آیت اللہ خمینی کا عروج ہوتا ہے، وہ واپس آتے ہیں، 70 لاکھ لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔
और अमेरिका के लगाए हुए शाह ईरान को मुल्क से भागती बनती है। खुमैनी वो अकेले लीडर थे जिन्हें अमेरिका बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सका। वो उनकी इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बाहर थे, यानी अमेरिका और इसराइल दोनों इन मुख्तलिफ लीडर से एक ही तरह खौफजदा थे, क्योंकि दोनों उनके रिवायती कंट्रोल सिस्टम से बाहर निकल चुके थे। कि अमेरिका के इशारे पर इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया ताकि इस नए इनकलाब को इसके आगाज में ही कुचल दिया जाए। और इस खौफनाक जंग के दौरान एक बहुत अहम वाकया पेश आया। खुमैनी के एक शागिर्द एक दाखिली हमले में शदीद जख्मी हुए। उनका एक हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया और वो शागिर्द थे अली खामेनी के। जब खामेनी ईरान के सदर बने और उनसे इस जख्मी होने और इराक से चल रही इस लंबी जंग के बारे में पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उन्होंने इराक का नाम नहीं लिया, जो कि बाज़ाहिर उन पर गोलियां बरसा रहा था। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हमारा असल दुश्मन अमेरिका है। फिर वक्त आगे बढ़ता है। आयतुल्लाह खौमेनी इस दुनिया से रुखसत होते हैं। उनके जनाजे में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए, जो इंसानी तारीख का एक आलमी रिकॉर्ड है। इसके बाद अली खामेनी सुप्रीम लीडर बनते हैं, लेकिन जब वो इस मनसब पर आते हैं तो आलमी शतरंज का नक्शा बहुत खतरनाक हो चुका था। खामेनी को 2 बहुत बड़े और सख्त खतरों का सामना था। पहला खतरा फिजिकल था। उनके इर्द गिर्द के पड़ोसी मुसलमान ममालिक जैसे कतर, यूएई, सऊदी अरब और इराक, उन सब में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस कायम हो चुके थे। वो चारों तरफ से घिर चुके थे। और दूसरा खतरा इजराइल के अंदर बन रहा था, जहां बेंजामिन नेतान्याहू का उरूज हो रहा था। नेतान्याहू ने आते ही वाजे कर दिया था कि उनका अगला निशाना इराक और ईरान है। लेकिन किसी भी सूरत में इजराइल अकेले ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। उन्हें एक बहुत बड़े असबाब, एक जवाज और सुपर पावर अमेरिका की फुल मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी। आलमी सतह पर जवाज या एक्सक्यूज कैसे बनाया जाता है? 9/11 के वाकयात के बाद तो नेतान्याहू और अमेरिका के मखसूस तबकों ने मिलकर एक बहुत बड़ा, तारीख का सबसे बड़ा झूठ बोला। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बयानिया बनाया कि इराक के सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी एटम बॉम्ब है। और इस दावे की बुनियाद पर अमेरिका ने पूरी ताकत से इराक पर हमला किया, मुल्क तबाह कर दिया, लाखों जाने गईं। बाद में आराम से एतराफ कर लिया गया कि सॉरी, हमारी इंटेलिजेंस गलत थी, वहाँ तो कोई एटम बॉम्ब था ही नहीं। ये दरअसल एक प्लेबुक थी, एक फार्मूला था। जब नेतान्याहू ने दोबारा यही फार्मूला ईरान पर लगाना चाहा कि ईरान एटम बॉम्ब बना रहा है ताकि अमेरिका वहाँ भी अटैक करे, तो यहाँ खामेनी की हिकमत अमली ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक रिलीजियस फतवा दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि इस्लाम में एटमी हथियार यानी एटम बॉम्ब बनाना ही हराम है। फतवे ने वाकई उनकी कैसस बेली यानी जंग के असबाब को खत्म कर दिया था। दुनिया पहले ही इराक के मामले में बेवकूफ बन चुकी थी। अब वो एक नए एटमी झूठ को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इजराइल और अमेरिका के पास हमले का आलमी जवाज नहीं रहा। इसी शदीद बेबसी के आलम में इजराइल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बयान का, जिन्होंने ईरान को एक ऑक्टोपस कहा, यानी जिसके 8 हाथ होते हैं और वो दूर दूर तक फैले होते हैं, और उनका मफहूम ये था कि ईरान के ये हाथ यानी उसके प्रॉक्सीज और इत्तेहादी पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुके हैं। उनका कहना था कि हम पिछले 25 साल से सिर्फ इन हाथों से, इन प्रॉक्सीज से लड़ रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन हाथों को छोड़कर सीधा उस ऑक्टोपस के सर पर वार करें, और वो सर ईरान और उसके सुप्रीम लीडर थे। लेकिन सर पर वार करने के लिए एक रुकावट अब भी बाकी थी। इजराइल को इस आखिरी और हतमी हमले के लिए हर हाल में अमेरिका की फुल मिलिट्री सपोर्ट और अप्रूवल दरकार थी। लेकिन अमेरिका की क़यादत में एक ऐसी मौजूद थी जो पिछले 25 साल से ईरान पर किसी भी किस्म के हमले के सख्त खिलाफ थी। वो कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी हमेशा इस बुनियाद पर रही कि अमेरिका को इन जंगों से दूर रहना चाहिए और डील्स करनी चाहिए। यहाँ तक ट्रंप ने इस वॉर मॉन्गरिंग पर नेतान्याहू को मॉक भी किया था और उन्हें इस हद तक पुश किया कि उन्हें कतर के अमीर से पूरी दुनिया के सामने माफी मांगनी पड़ी। सबको लग रहा था कि जब तक ट्रंप का असर है, ईरान पर फुल स्केल आलमी जंग शुरू नहीं हो सकती। लेकिन फिर अचानक रातों रात सब कुछ बदल गया कि जब एटम बॉम्ब का बहारा और पॉलिटिकल दबाव दोनों फेल हो गए, तो एक दाखिली स्कैंडल का इस्तेमाल किया गया जिसे एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। बताया गया है
कि इन फाइल्स में 53 ऐसे सफ़ात छुपाए गए थे जिनमें ट्रंप के बारे में इंतहाई संगीन और खतरनाक मालूमात थी। और इस ब्लैकमेलिंग के तहत ट्रंप ने अचानक अपनी 25 साल पुरानी पॉलिसी पर यू टर्न लिया और नेतन्याहू के साथ मिलकर उस हमले का ऐलान कर दिया जिससे वो हमेशा खिलाफ थे। क्या हम वाकई ये मान लें कि अमेरिका का एक दाखिली डोमेस्टिक स्कैंडल आलमी दुनिया की इतनी बड़ी जंग की वजह बन गया? यानी एक शख्स जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत है वो इस ब्लैकमेलिंग में आकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल देगा। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कॉम्प्रोमैट कहते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल। सियासत में आलमी पॉलिसीज अक्सर उन फैक्टर्स पर तय होती हैं जो पब्लिक को नहीं दिखते। कि जब आलमी लीडर्स रिवायती तरीकों से नहीं मानते तो उन्हें उनकी जाती कमजोरियों के जरिए मजबूर किया जाता है। इसे हम ब्लैकमेल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। सही। सो जब ये पॉलिटिकल और ब्लैकमेलिंग की रुकावटें दूर हो गईं, तो फिर शुरू हुआ आखिरी वार। इस ऑपरेशन के पहले दिन ही एक हमले में 107 बच्चियां शहीद हुईं। इस खूनरेज़ी के जवाब में ईरान ने उन अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स दागे जो इस इलाके के पड़ोसी मुसलमान ममालिक में कायम थे। और फिर सामने आया इजराइल का आखिरी वार। उन्होंने अपने 200 सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स उड़ाए जो एक मखसूस किस्म के मिसाइल से लैस थे जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ये आम मिसाइल्स नहीं होते। बंकर बस्टर का मैकेनिज्म ये होता है कि वो जमीन से टकराते ही नहीं फटते। उनमें ऐसी किनेटिक ताकत और डिजाइन होता है कि वो कंक्रीट की इंतहाई गहरी तह को चीरते हुए अंदर घुसते हैं, उसके बाद फटते हैं ताकि जमीन दोज अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया जा सके। इन 200 फाइटर जेट्स ने खामेने के खुफिया अंडरग्राउंड बंकर पर ऐसे 30 बंकर बस्टर मिसाइल्स दागे और इस तरह उन्हें शहीद कर दिया गया। और इन हजारों धमाकों, पॉलिटिकल यू टर्न्स और खूनरेज़ी के बाद और हैरान अंगेज तौर पर वाकयात का ये सारा घूमता हुआ दायरा वापस आकर वहीं मिलता है, उसी पॉइंट पर, उसी 1400 साल पुरानी हदीस पर जहां से हमने अपनी आज की बात शुरू की थी। नतीजा सुनने वालों के लिए इंतहाई पुरदर्द है। आज दुनिया में 2 अरब मुसलमान जिंदा हैं। लेकिन इस आलमी शतरंज में उनका वजन, उनकी हैसियत वही बनी रही जो पानी पर मौजूद झाग की होती है। एक छोटा सा मुल्क जिसके लोग लाखों में हैं, वो उन 2 अरब के मरकज में घुसकर उनके लीडर को मारता है और वो 2 अरब कुछ नहीं कर पाते। ये उस हदीस की अमली तस्वीर है जो इस सोर्स मटेरियल का मरकज है। और सिर्फ यही नहीं, ये इशारा भी देता है कि ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं। इस झाग को मजीद बिखेरने के लिए अगला निशाना कतार या टर्की हो सकते हैं। दुनिया की आबादी में इनका हिस्सा चाहे कितना ही बड़ा हो, इनकी मिलिट्री बेसिस पर चाहे किसी का भी कब्जा हो, इस आलमी ताकत के सामने वो बेअसर ही रहेंगे। जब तक आप अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल नहीं रखते, आप सिर्फ दावत का खाना बने रहेंगे। अगर हम आज भी एआई और आने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी से डरकर या उसे नजरअंदाज करके पुराने तरीकों पर कायम रहें, तो क्या आने वाले 100 सालों में हमारा हशर बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा जैसा पिछली सदी में हुआ? ये वाकई एक बेचैन करने वाली हकीकत है। तारीख हमेशा खुद को दोहराती है और सिर्फ टूल्स बदल जाते हैं। इस गहरे तज्जिये में इन पेचीदा असरार और रुमूज को समझने के सफर में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगली मर्तबा किसी नए मौजू और उसकी गहराई के साथ दोबारा मिलेंगे।